Assalamu alaikum everyone. I am Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's session on personal development by Mr. Faizan. Welcome, Mr. Faizan. He is senior consultant and facilitator at Q Consulting and has done his BBA from IB Karachi. He is also the co-founder of JennyWorld.com and Berry Outfits. So he would be guiding you today more on personal development. So it's over to you, Mr. Faizan. Thank you very much, Karan. I really like just a second. I'm putting up the camera just so you can see me. आप में से भी जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, quickly request if there's something, there's nothing happening at your end, open up your camera. जितने लोग कर सकते हैं, तो that would be something that I would really request if you can open up your cameras so that we can get to see you. कौन है, क्या है, किस तरह से हम इस conversation को start कर सकते हैं. So just give me 10 seconds. So although open up the cameras, I request you to do so, and then we can. Done. I'm assuming that there's something that's having you caught up on the basis of which the camera is something full bar. It's completely understandable. Let's have this voice check as well, क्योंकि कायनात ने लिखा है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. तो मुझे बस ये बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज जो है वो आ रही है, ऑडिबल ये कायनात के साथ है या ये आप सब लोगों के साथ नहीं है. सर आवाज आ रही है बट पिच थोड़ी हाई क्लियर नहीं है आवाज सो इफ यू कैन एडजस्ट प्लीज. एक सेकंड. अब मुझे बताओ, इज इट क्लियर ना? Yes sir, it's now audible. It's fine. Perfect. चलें, that's really good. Thank you very much. Understanding that हम लोग कैमरा नहीं खोल पा रहे हैं, it's okay, it's completely acceptable as of now. लेकिन जो चीज आप सबसे गुजारिश है, and that is that we use the chat box very often for a lot of conversations. जब जहाँ जिस अंदाज में जरूरत पड़ेगी, you can raise up your hand and then we can take you to unmute you, and you can add in your point, comment, question, whatever that is. Unless and until आपने जो है वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, ताकि जो वॉइस क्लैशेस हैं उसको हम बचा सकें और आपकी चीजों को हम लेकर आगे चल सकें. ठीक है जी. करण ने ऑलरेडी मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा दिया है. जस्ट लेटिंग यू ऑल नो दैट माय नेम इज फैजान. आई वर्क विद यू कंसल्टिंग for the past about good 8 to 9 years, I've been associated with learning and development industry. I work with individuals across the globe, and when I say individuals, I mean humans, individuals of all age groups. So I work with individuals as young as 5, 6 years of age, and going up to the bar of about 70, 75 years of age. So इस पूरे spectrum के अंदर ये दो extremes हैं, और of course all the ages in between, इन सबके साथ मुख्तलिफ एरियाज पे, मुख्तलिफ रीजन्स पे, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स पे काम करने का इत्तेफाक हुआ है. Development sector, youth, academia, corporate sector, all these sectors are what I work with, not just in Pakistan but across. Worked on a lot of train the trainer programs, worked on a lot of individual development programs, worked on a lot of personality development programs. All that has been happening. ठीक है. आज आपकी और हमारी जो ये जूम मीटिंग है, ये ऑटोमेटिक जूम मीटिंग जो हम सबके पास होती है, which is a 40-minute Zoom meeting, ये वो है, and as soon as this ends, everything ends for us. So rather than just coming up with something, and bombarding you from my end, I would rather make this more conversational, more interactive. So ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस अपनी तरफ से पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बेहतर होने के 4 सुनहरी उसूल जिसको आपने जिंदगी में अपना लिया, पानी में घोल के पी लिया 3 टाइम सुबह दोपहर शाम, तो जो है आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, आपके रिश्ते जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके अम्मा अब्बा बिल्कुल मान जाएंगे. ऐसी चीजें नहीं. ठीक है. सो पर्सनल डेवलपमेंट इज समथिंग दैट्स वेरी सब्जेक्टिव एज ऑफ अ सब्जेक्ट, differs from each one of if from each for each one of you, and that's how we like to take it forward. So इसको हम बहुत ज्यादा conversation that I'll be throwing in questions. I would rather ask you to use the chat box to answer those questions, given your input. बीच में कोई चीज ख्याल आ रही है, कोई बात आ रही है, चैट बॉक्स में जाकर बिल्कुल लिख दें ताकि मेरे पास वो चीज आ जाए, and I can view it and then we can address that. ठीक है. That's how we're going to take it forward. अगर अब तक आप लोग मेरे साथ हैं तो जरा give me yes in the chat box.
Karan, you have a question? Yes, sir. Actually, I've seen you have been co-founder of many startups, so I want to ask you that how to furnish our personality in such a way that we become good leaders and entrepreneurs. Zabardast. So, entrepreneurship, what I'll do is I'll write this down with me. Um, so, entrepreneurship and leadership person is what you want. ठीक है. चूंकि तुमने हाथ उठाकर इसको बता दिया है, मैं बाकी सबसे भी गुजारिश करूंगा कि डायरेक्टली इन द चैट बॉक्स प्लीज राइट इन योर challenges with regards to personal and professional development. ठीक है. सो मैं चाहता हूँ कि आप सब जरा अपने challenges, अपनी aspirations दोनों हो सकती हैं. हो सकता है कोई challenge हो प्रोफेशनल लाइफ का, पर्सनल डेवलपमेंट का, अपने आप को किसी सूरत बेहतर करने का, कोई स्टार्टअप से रिलेटेड, कोई एनजीओ से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन. सो वो क्वेश्चन, वो चैलेंज आपने यहाँ पर मुझे कमेंट में जो है ना वो चैट बॉक्स में डाल के लिख दें. इफ इट्स नॉट अ चैलेंज एज ऑफ नाउ, अभी तक आपको लग रहा है कि नहीं सब ठीक ठाक चल रहा है, बट देयर इज एन एस्पिरेशन, कोई ख्याल, कोई ख्वाब जो है वो आपने देखा हुआ है और आप चाहते हैं, आप उसको अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है. सो मे बी यू कैन पुट दैट डाउन एज एन एस्पिरेशन एंड अ challenge that you would want to achieve but you're not able to. So maybe take in the next 60 seconds, अगले 7 सेकंड जरा मोबाइल पे हैं, लैपटॉप पे हैं, जिस भी सूरत है, जरा चैट में जाएं और अपना चैलेंज, अपनी एस्पिरेशन को वहां पर प्लीज लिख दें so that I can read it and it's more visible for everyone. And then with all those challenges, we direct the conversations accordingly. So we have a comment from Ali Baksh. She's saying personality is directly linked with communication skills, or without communications, you can improve your personality. So thank you very much, Ali. Great question. We'll discuss that alongside Karan's question as well. बाकी लोगों को भी सलाह दी जाती क्या है चीज़ कि क्या सेकंड पे हाँ comment का इंतजार कर रहे हैं. So if you could just maybe put that down in the chat box so that we can know मसले मसाइल बताएं, आप बताएं, aspiration बताएं, tell us something about yourself, anything that you would want to get discussed under personality development. Chale. I believe that life is a skill. Do you agree with that? PK Farhan, thank you very much for questioning this way. इसको मैं address करता हूँ, but I would want others to write this down as well. If there's any more questions that you have, you can put that down as well. कोई और सवाल है तो भी लिख दो. कोई aspiration challenge है तो वो भी लिख दो. Life is a skill, अच्छा सवाल है, लेकिन with regards to personal development, तुम इसको किस perspective से देख रहे हो, वो भी अगर तुम मेरे साथ share कर दो तो अच्छा होगा. When I say अपना perspective फरहान, I mean कि तुम इसको किस नजरिए से देख रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि लाइफ एक स्किल है, वो अगर तुम नजरिया, वो जाविया अगर हमें दिखा सकते हो. चलें जी, बाकी अफराद, I'm waiting for you to respond. देखें, if you don't respond, there's no point of this conversation. So unless and until you have, if you're just here for something कि आप चलो बैठे हैं सुन मजा आए, चले, there's no point. You are here for something. This is more like a power pack masterclass. So I would really want you to put down your challenges, your questions, your aspirations with regards to personality. I hope sir, I want किसी ने जबरदस्ती नहीं किया. Good, Farhan, जाओ, go ahead. सर मैं इसको एलोबरेट करना इस तरह चाहूंगा कि लाइफ इज एन स्किल. हर किसी का एक डिफरेंट तरीका होता है उसे जीने का. अब बहुत से लोग एक्सेप्टेशन जी सकते हैं. जैसे एक अच्छी फ्रीलांसिंग कोई कर सकता है, सब नहीं कर सकते. जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी कोई कर सकता है, नहीं कर सकते. इसी तरह सब अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते. जो ये एक स्किल है जो सब नहीं सीख पाते कभी कभार, और कभी कभार सीख लेते हैं. दैट्स माय पर्सपेक्टिव, आई बिलीव. सही कहीं वाह कि Thank you very much, Farhan. Very good. I just like to गुड. सो मैं ये कह रहा था फरहान दैट यहाँ पर बस मैं सिर्फ एक ही पॉइंट कहना चाहूंगा कि वो बड़ा मशहूर एक मे बी डायलॉग है, मूवी का जो कहते हैं ना, मे बी इरफान खान का है शायद, जिसमें वो कहता है कि जब तक हमें समझ आती है तब तक काम करना है. सो या दैट्स मे बी द पर्सपेक्टिव दैट यू आर लुकिंग एट इट विद, दैट इज बेसिकली टू से गुड. थैंक यू. जमीना, मिसबा, मासूमा, कायनात, सादिका, खान, मुश्ताक, तौफीक, सानिया, समर, सिमरन, सबा, राफे, उस्मा, यासिर, नूरुलैन, आयशा. Put down your challenges,
your aspirations, anything with regards to personal development. यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो, क्या मसला है, क्या जानना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें लग रहा है इस वर्कशॉप में, इस जूम सेशन में तुम्हें मिलने लगी है और तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा काम हो जाए. So just put that down so I get to know. Comment box में जाएं, जाकर उसे लिखें. अगर आपकी जो बात है वो आपको लग रहा है कि जी कमेंट बॉक्स में मैं नहीं डाल सकता, आई डोंट हैव द वर्ड्स टू पुट दैट डाउन, इट्स मोर लाइक एन इमोशन एंड आई वुड वांट टू एक्सप्रेस, तो अपना हैंड रेज करते हैं एंड वी आस्क यू टू अनम्यूट योरसेल्फ और फिर आप शेयर करें. थैंक यू कायनात. I want to develop my personal development. I face so many challenges, but I can not improve, sir. Kainat, and सबको मैं ये बता रहा हूँ, and not just for Kainat and for everybody else as well, because हमारे पास यहाँ पे कुछ अपराध सिंधी में भी थे. I'm not able to read Sindhi very well. सुन के थोड़ी बहुत समझ आ जाती है. अगर आपको कोई बात इंग्लिश में लिखनी है, उर्दू में लिखनी है, आप उसे लिखें, बिल्कुल लिखें और फ्लैट करके लिखें, कोई मसला नहीं. जबान की कैद नहीं है. इस कॉन्वर्जेशन का मकसद बात समझ आनी चाहिए. ठीक है कायनात, जब आपने लिखा है ना कि मुझे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो कोई अगर एक या दो चैलेंजेस आप शेयर कर सकें तो जरा अच्छा लगेगा, ताकि पता चले क्या. Someone ने कहा है, sir, I would like to discuss about male dominance culture in our society. Of course, with that, we try our best to lead and organize things, but there's always a barrier for others. That she's a girl, if girls can't do the voice, they always say, shut up all. Thank you very much, Samar Batul. अगर आप मुझे अपना एरिया यहाँ पर अगर मुझे, if you're comfortable, then if you just put down where are you speaking from. If not a particular region, then maybe province ही बता दें. Are you speaking from Sindh primarily? Yeah. दूसरी जगहों से भी चूंकि शायद हमारे पास लोग हैं तो अपने ही और से यही बताते हैं. How do we stay motivated every day? Thank you very much, Misbah, for this question. Amazing question. इसके ऊपर भी जरा बात करते हैं. ज़िग ज़िगलर का एक बड़ा मशहूर कॉल है ना, वो कहते हैं कि उनसे किसी ने सवाल किया कि जी मोटिवेशन जो है ना वो ज्यादा टाइम टिकती नहीं, तो वो कहते हैं कि जी आप क्या जिंदगी में एक ही दफा नहाते हैं क्या? इस तरह से आपको नहाने के लिए रोज जरूरत पड़ती है, उस तरह से मोटिवेशन के लिए रोज जरूरत पड़ती है. So how can we bring that in life is a good question. I lack confidence in public space. How will I overcome this? Okay, good. Sir, like during studies. Okay, so studies. When you say study, क्या पढ़ाई हो नहीं रही है, दिल नहीं चाह रहा, किताब खोलते ही नींद आ जाती है, या वो पढ़ रही हो जो पढ़ना नहीं चाहती हो. What is it all about? Nawab Shah, sir. ठीक है समझ. Thank you. We'll take one or two more responses. जरा comment box को जरा पॉपुलेट करें, जरा जिंदा करें, ताकि पता चले आप और हम सब जाग रहे हैं. एंड देन वी आर गोना बिगिन दिस कन्वर्सेशन एज इन फ्रॉम माय साइड एज़ वेल. आप जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, आगे पीछे से फंसे हुए थे, अब जाकर आए हैं कहीं, सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो, इफ यू कैन हियर मी, वी आर डिस्कसिंग चैलेंजेस एंड एस्पिरेशंस विद रिगार्ड्स टू पर्सनल डेवलपमेंट जो आपकी हैं. आपने कमेंट में जाकर ना वो लिख देनी है ताकि हमें पता चल जाए और हम उसको लेकर कॉन्वर्सेशन पे चल सकें. चलो, put down things on your comments. आप अपने comments जो भी आपके दिमाग में बात आ रही है, बीच में भी कोई बात आए ना, लग रहा है भूल जाओगे, तो प्लीज उसको comment box में डाल दो ताकि हमें पता चल जाए वो बात क्या है और हम उसको maybe in the middle or towards the end address कर लें. How do emotional regulations and thought patterns influence personality development? Very good सवाल, मजेदार सवाल. Good. How to develop confidence? Tasleem, thank you. जबरदस्त. चलो. let the let the comments flow in. मजेदार सवालात आपके आ रहे हैं. इस पूरे सिलसिले को जो है ना, I'd rather bring this down to something that is very tangible, very basic, and something that you and I can take it back from this conversation. ठीक है. मेरी कोशिश है जो बहुत सारे सवालात आए हैं जो अलाइन है एक साथ, उनको मैं जवाब दे दूं. अगर आपको लगे कि आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है वेरिएंट, सो आपको फिर से टाइम हुआ तो मैं आपको जवाब नहीं हुआ अनदर पोस्ट होगा मैं हुआ से आप सर्च, तो आप तस्वीर देख, तस्वीर आता नहीं है तो यहाँ पर शायद नजर, लेकिन वहां पर जब आप मुझे अपना सवाल भी नॉट yet answered in this conversation. ठीक है. Let's officially kind of kick off with this understanding कि देखें जब आप मैं की बात कर रहे हैं ना, तो what's the basic idea? हम में से बहुत सारे लोग जी पर्सनल डेवलपमेंट वो निकल पड़ते हैं पर्सनल डेवलपमेंट की जंग के अंदर, ये जाने बगैर कि पर्सनल डेवलपमेंट है क्या. जब हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, बड़ा जेनेरिक सा एक अंग्रेजी का लफ्ज हो गया है आपके और मेरे लिए, और हम ना इसको बस डिस्कस किए जा रहे हैं, इसके प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, इसके जूम सेशन अटेम्प्ट किए जा रहे हैं. देखो इसको यूं समझो
कि आप और मैं जो जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये जिंदगी इसी अंदाज से, इसी तरीके से, ऐसी ही तर्ज पे हमेशा से नहीं गुजारते हुए। ठीक है। इसको देखने का एक और जाविया मैं आपको ये देता हूँ कि इमेजिन दैट आप जो है ना, आपको आपका एक दोस्त फोन करता है और वो कहता है कि यार फलाना मसला हो गया। ठीक है। आप अपने घर के अंदर हैं और एकदम से फैमिली के अंदर कोई ना कोई चैलेंज हो जाता है। तो अब आप उस चैलेंज को, उस मसले को, दोस्त की उस कॉल को जो आपको आई है कि यार ये मसला हो गया है एंड आई वांट यू टू हेल्प, उसको जिस तरीके से एड्रेस करें, उसको जिस तरीके से जवाब दें, उसके साथ जिस तरीके से ताल्लुक बनाएंगे, उस पर जो रवैया इख्तियार करें, उस पर जो रद्द अमल इख्तियार करेंगे, वो रद्द अमल जो आप आज इस वक्त इस हालत में इस अमल के होने पे इख्तियार करेंगे, ये वो रद्द अमल शायद नहीं होगा जो आज से 5 साल पहले वाला आपका वर्जन, अगर आज के दिन में वही वर्जन एग्जैक्ट मैं खड़ा कर दूं ना जी, कि ये वो पुराना 5 साल पुराना करंट, ये 5 साल पुरानी कायनात है, ये 5 साल पुरानी मिसबा है, और वो आज उसको ये वाला मामला दरपेश हुआ है, अब उसको उसका रद्द अमल क्या है, तो वो रद्द अमल और आज की मिसबा का रद्द अमल दोनों बड़ा फर्क हो। ठीक है। अच्छा, अब ये जो तफरीक, ये जो फर्क आपके अंदर, आपके इस रद्द अमल, आपकी अप्रोच, आपकी आइडेंटिटी में आया है, ये फर्क आपके ओवर द टाइम जमा हुए एक्सपीरियंसेस की वजह से आया। सही है। इस 5 साल के अरसे के अंदर बहुत कुछ हुआ है। शायद आज से 5 साल पहले, टेकिंग इट बैक, 2019 का टाइम था, आप और हम बड़ा चिल में जिंदगी गुजार रहे थे, हमें सब अच्छा लग रहा था, सब मजेदार लग रहा था, नया नया, मतलब हम लोग में से शायद बहुत सारे लोग, यू नो, फर्स्ट टाइम बीइंग यंगस्टर्स, वेरी यंग, एंजॉयिंग द लाइफ, अनलेस 2020 कोविड केम। देन कोविड की वजह से जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत कुछ देखा, बहुत सारी चीजों से गुजरे। उन सारी चीजों से गुजरने के बाद विद टाइम आज आप और हम एक मुख्तलिफ सिनेरियो में मौजूद हैं। यानी इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर आपके सामने पेश है ना, तो वो ये अपने आप में जिम सेशन है। यानी 2019 में अगर आपसे यू नो एसईओ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे मैसेज करती है और आपसे कहती थी एक सेशन हो रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे और वो जूम पे होगा, तो आप कहते हैं यार ये जूम वूम क्या होता है, ये ऑनलाइन क्या बातें कर रहे हो, मतलब तुम मुझे बताओ कि हमारे मोहल्ले में, नवाबशाह में, इस कोने में, इस जगह पर आ रहा है, कराची में इस कोने में, लाहौर में इस कोने पे, टंडो जाम में इस कोने में, सखर में इस कोने में, इस शहर, इस ढाबे पे, इस चाय पे, इस होटल में, इस रूम में, इस कॉन्फ्रेंस हॉल में, यहाँ कोई आ रहा है, इस बारे में बात कर रहा है, तो फिर ठीक है, हम आने के लिए तैयार है। ये रात को 9:30 बजे आप मुझे बोल रहे हो कि यार ज्वाइन अ जूम मीटिंग, ये क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? लेकिन इस कोविड के अरसे के अंदर आपने और हमने इस चीज को सीखा, समझा, अडेप्ट किया, और अब हमें समझ आया कि देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज ऑफ लर्निंग दैट वी कैन यू नो टैप अपॉन, यू वी कैन कैपिटलाइज ऑन, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप और हम यहाँ पर मौजूद। तो ये जो वक्त का अरसा, ये जो जिंदगी का अरसा, ये जो एक्सपोजर का अरसा लगाने के बाद आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर फर्क आता है ना, इसको आप और हम डेवलपमेंट के, ठीक है। अब ये चूंकि आपकी जिंदगी में इसलिए पर्सनल है, अब इसमें जितने सारे सवालात आपने मुझे पेश किए ना, अब उसको जरा जहन में रखते हैं और इसको जरा एक फाउंडेशन, इसकी एक बाउंड्री सेट करते हैं कि हम कॉन्वर्जेशन किस चीज के अराउंड कर रहे हैं, और कॉन्वर्जेशन का मकसद क्या है। देखो, इस पूरी कॉन्वर्जेशन का मकसद कतन और कहीं भी ये नहीं है कि बॉस आप और हम जो है ना, वी आर एट द रॉन्ग पाथ, हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारे पास कुछ मसले मसाइल हैं और हमसे सही चीज नहीं हो रही है, और हमें जो है ना वो प्रॉब्लम है और हमें उस प्रॉब्लम से निकलना है। शायद इसी वजह से जब मैंने शुरू में सवाल भी किया था, तो मैंने ये नहीं पूछा था व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, आई सेड व्हाट आर योर चैलेंजेस। ठीक है। तो आप मसले में नहीं है, आप किसी ना किसी चैलेंज का शिकार हैं, आप किसी ना किसी दुश्वारी का शिकार हैं, जिसको आप ओवरकम करके, उससे निकलकर, उससे उभर सकते। ठीक है जी। सो लर्निंग जो भी होती है वो दो वजह से हो रही होती है। वजह नंबर वन, द फर्स्ट रीजन फॉर एनी काइंड ऑफ लर्निंग एक्सरसाइज इज अ प्रॉब्लम अप्रोच। ठीक है। प्रॉब्लम अप्रोच ये कहती है कि बॉस ये दुनिया का स्टैंडर्ड, ठीक है, इस दुनिया के स्टैंडर्ड पे आप जो है ना वो यहाँ कहीं, तो चूंकि आप यहाँ कहीं हैं तो एक गैप आ गया, उस गैप को फिल करना जरूरी है, क्योंकि दुनिया का बेंचमार्क और स्टैंडर्ड यहाँ पर है और आप उससे नीचे हैं। तो अगर आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं कि लोग आपको थोड़ी सी भी इज्जत दें, आपकी कुछ पहचान हो, आपकी कुछ आइडेंटिटी हो, तो आपने उस स्टैंडर्ड को मीट करना है। उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए आपको वो गैप फिलिंग, दैट्स अ प्रॉब्लम अप्रोच। द सेकंड अप्रोच टू द ट्रेनिंग इज
द डेवलपमेंटल अप्रोच ये कहती है बॉस, ये जो है ना ये दुनिया का बेंचमार्क है। आप जो है ना वो या तो इस बेंचमार्क पे कहीं है या इससे थोड़ा सा ऊपर कहीं। आप यहाँ हैं, सो यू आर अबव द बेंचमार्क, यू आर डूइंग गुड, इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं है अल्लाह ना करे कि कोई बहुत मुसीबत आ गई। द चैलेंज इज जो आपको जो चीज तंग कर रही है ना वो ये कर रही है, वो जो आपको बेचैन कर रही है ना वो ये कर रही है कि बॉस मैं जो है ना वो इस लाइन से ऊपर हूँ, लेकिन जिस स्पीड से दुनिया चेंज हो रही है ना, दिस जब भी हम बात कर रहे थे 2019 आपके और हमारे पास सब ठीक ठाक था। 2020 हमने कोविड देखा, देन कोविड के बाद हमने इस मुल्क के अंदर सैलाब देखा, देन उसके बाद हमने इस मुल्क के अंदर एक तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस देखा, देन उसके बाद हमने इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखा। There's a lot of things that we have seen in the past few years. ये सारी चीजें जो आपने और हमने पिछले 2-3 साल में, एंड देन राइट नाउ वी आर फेसिंग अ वेरी सिवियर ग्लोबल क्राइसिस। ठीक है, उस पूरे सिनेरियो के अंदर ये सारा मामला आपकी और मेरी जिंदगी के बस चंद साल है, टू बी वेरी एग्जैक्ट 4 साल। लेकिन इट रियली फील्स लाइक दैट वी हैव स्पेंट मोर देन 10-20 years. दिस एक्चुअली इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हमें ये जानना है, ये समझना है कि ये 4 साल अगर 10-12 साल से ऊपर लग रहे हैं ना बॉस, इसका मतलब ये है कि दुनिया एटलीस्ट 3x की स्पीड पे चल रही है। तो आज बेंचमार्क ये मैं यहाँ हूं ना, ये इस स्पीड से चल रही है ना, ये अगले ही महीने अगले ही साल ये यहाँ ना पहुंच पाए। और मैं बेंचमार्क से नीचे आ जाऊं, फिर प्रॉब्लम अप्रोच पे आ जाऊं और कहीं कोई वैल्यू ना रहे और फिर मैं फंस जाऊं और फिर मुझे मजबूरी में कोई चीज करनी पड़े। सो द डेवलपमेंटल अप्रोच से इसके बॉस मैं यहाँ हूं, मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा ऊपर ही रहूं, ताकि जैसे ही बेंचमार्क ऊपर हो तभी मैं ऊपर ही रहूं। सो पुशिंग योरसेल्फ एवरी डे इज व्हाट दिस बेंचमार्क इज ऑल अबाउट। ठीक है जी। सो अब बहुत सारे सवालात जो हमारे पास आ रहे थे ना कि यार हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, कैसे हम अपने आप को बेहतर तरीके से गोल्स के साथ अलाइन रखें। मे बी मिस का वो सवाल था, यस, हाउ डू वी स्टे फोकस्ड ऑन गोल्स। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू एंड आई नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इज दैट इस पूरी कहानी के अंदर have your mind set towards the goal, if you have your mind set towards the objective, कि बॉस व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग इट फॉर अ रीजन, ये मेरा विजन है, ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा ख्याल है, या तुम्हारी निगाह अपने ख्वाब अपने ख्याल पर मौजूद है, तो फिर तुम्हारे लिए उस पर फोकस रहना कंपेरेटिवली आसान हो। और भी इसकी चीजें होती हैं वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। लेकिन इसको समझो दैट थिंग इन द पर्सनल डेवलपमेंट अरीना दैट यू एंड आई वी नीड टू मेक श्योर that we have a vision clear like a crystal, और वो हमें वाजे नजर आ रहा हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन हमें पता होनी चाहिए, हमने जाना किस तरफ। वो डेस्टिनेशन जरूरी नहीं है कि किसी एक सर्टेन बेंचमार्क की सूरत हो कि जी मुझे जो है फलानी कंपनी का सीईओ बनना। अगर ऐसा है तो ठीक है, गलत ये नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर तो वो ये भी है तो ठीक, लेकिन अगर वो इसके बरक्स भी कुछ है दैट आई वुड वांट टू बी एट अ पोजीशन दैट इज इन्फ्लुएंशियल इनफ दैट आई कैन मेक वर्क हैपन इन माय कम्युनिटी। मैं चाहता हूं मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं कि जहां पे मेरे कुछ कहने से मेरी कम्युनिटी के अंदर कोई काम फट करके हो जाए। दैट्स ऑल्सो अ विजन। ठीक है, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो वो विजन सेट करो सबसे पहले, वो ख्याल सेट करो, वो ख्वाब सेट करो। इफ यू डू दैट यू डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जॉब। सही है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड देन गेट इजी, बिकॉज एनी एंड एवरी टाइम व्हेन यू फील दैट यू आर डिस्ट्रैक्टेड is when you can revise, is when you can remind yourself why did you actually start it. जब लगे ना कि यार छोड़ देते, तब अपने दिमाग को अपने आप को ये ख्याल जरूर दे सकते हो कर क्यों रहा था, और फिर वो वापस वो विजन रिवाइव हो जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। डिस्ट्रैक्शन का असर कम होगा, मोटिवेशन बेहतर हो जाएगी, बहाल हो जाएगी और जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, कंपेरेटिव, दैट्स व्हाट द फर्स्ट लेयर इज। ठीक है, so yeah, we'll take your question right now. Let's just understand this. Number two, once you have your vision set, ठीक है, उसके बाद की जो कहानी है ना towards your development, उसको इस अंदाज में समझो, and I'll rather simplify this और आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए। वो ये कि देखो पर्सनल केस एम्बिट को समझो कि अपने आप को डेवलप करने की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जी आप और हम कैसे बेहतर। सो अभी जो आप और हम है ना, इसके फॉर्मेशन को, आप और हम जो हमारा जो फॉर्मेशन है ना, वो इन एसेंस आइडियली 3 चीजों पर मुश्किल। ठीक है, चीज नंबर क्यों हमारे पास है ना, दैट्स द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है,
चीज नंबर 2 जो आपके और हमारे पास है ना, वो है द ह्यूमन बॉडी। दैट तो चीज नंबर 3 जो आपके और मेरे पास है ना, दैट्स द सोल दैट वी कैरी। ठीक है, ये 3 चीजें आपके और हमारे पास हैं दैट एक्चुअली कमिंग टुगेदर फॉर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूट्स टू बी अ पर्सन। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सोल। ठीक है, because the idea of soul is something that it was pure in its inception, it was pure when it was given to you, and it is still pure when it is with you, and the day it goes out of you is the day when it will again be as pure as it was when it came to you. That's there, वो आपका हिस्सा है बॉस, वो कहीं नहीं जा रही। तो फिर when you and I talk about personal development, तो हम उसको बेहतर करने की बात नहीं कर रहे, बिकॉज वो आपके पास मौजूद है तो वो अपने आप में बेहतरीन होने की निशानी, बिकॉज इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम समबडी हु इज द बेस्ट। सो वी आर नॉट सपोज टू मेक दिस बेटर, वो बेहतरीन है, बाकी चीजों के अंदर कहीं कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है जिसकी वजह से वो अलाइनमेंट्स नहीं। So the purpose of personal development is not to work on the soul, but it is to bring the mind and body in alignment to the soul so that you and I can live a better uplifted life. ठीक है, अब आ जाओ बाकी 2 चीजों के ऊपर। So the mind and the body that you have. The body that you have is apparently a output machine. ठीक है, ये जो जिस्म आपके पास है इसका काम आउटपुट दे, यानी आपने पानी का गिलास चाहिए तो आपने जी हाथ से उठा लिया, आपने पी लिया। आपको किसी जगह पहुंचना है तो जी आप चलकर उस जगह पर पहुंच गए। आपने जो है वो कुछ वजन उठाना है तो आपने हाथ से उठाया। आपने अगर किसी चीज को सुनना है तो आपने उसको सुन लिया। आपने अगर किसी चीज को देखना है तो आपने उसे देख लिया। सो द बॉडी इज समथिंग that is in a sense working on either taking the inputs, giving the outputs or orders. So ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस सो रहे हैं और सोते हुए जो है ना वो आप चल चल के जो है वो शॉपिंग करके आ रहे हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इवन स्लीप वॉकिंग के अंदर भी दे से दैट योर सबकॉन्शियस इज अवेक। ठीक है, सो आपके जहन का एक हिस्सा होता है सबकॉन्शियस, कॉन्शियस। जब हम माइंड को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बहुत आसान से समझा दूंगा। द आइडिया इज योर बॉडी समथिंग दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन a instruction that is given to it by whom? Your mind. So when you and I talk about personal development, what you and I are primarily talking about and thinking about and are working towards is this brain that you and I have, is the mind that you and I। ठीक है, ब्रेन जो है वो हार्डवेयर कहते हैं जो आपको और मुझे हम सबको दिया गया है। माइंड जो है ना वो उसके सॉफ्टवेयर को कहते हैं। सो अब आइडियली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर, बिकॉज हार्डवेयर हम सबको बराबर दिया। ठीक है, उस हार्डवेयर की कैपेसिटी, उस हार्डवेयर की ताकत हम सबको बराबर दी। What is actually a challenge is the software and the use of software that you have। ठीक है, हम सब माशाल्लाह डिजिटल दुनिया के अंदर है, so हम सबके पास कैनवा का फ्री एक्सेस है, लेकिन कुछ होते हैं जो चीते होते हैं, उन्होंने कैनवा का प्रीमियम एक्सेस भी लेके रखा। ठीक है, सो दैट्स हाउ योर माइंड इज लाइक कि एक एक्सेस उसका फ्री है, कुछ लोग जो है वो फ्री भी नहीं चला रहे। इस तरह के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैनवा खोल ही नहीं रहे, आसानी के जितने रिसोर्सेज मौजूद है उनका इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। कुछ हैं जो बेसिक इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ है जो प्रीमियम पे जाकर इस्तेमाल। जस्ट लाइक दैट इज योर ब्रेन, there's a basic use जो नहीं कर रहे and they're seeing it in this life। जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं, उनकी जिंदगी चल जरूर रही है, लेकिन there are certain challenges that they face। Then there are some people who are using the premium version and are able to see things happening for them, not by them only, they're able to see things happening for them as well। That's the power of your mind that you। अब इसके ऊपर बस एक छोटी सी एक मजेदार रिसर्च शेयर करता हूँ तुम्हारे और मेरे दिमाग की ताकत के ऊपर, ताकि तुम्हें समझ आए कि द डिवाइस दैट यू कैरिंग हाउ पावरफुल दैट इज। देयर वाज दिस रिसर्च कंडक्टेड बाय अ साइंटिस्ट। वो करता ये है कि उस रिसर्च के लिए ना उसको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसके ऊपर जो है ना वो मौत वाजिब हो, यानी सपोज टू डाई। तो ढूंढता हुआ वो मुख्तलिफ कोर्ट रूम्स में जा रहा होता है, वाइल जाता है, उसमें एक इंसान दिखता है। वो इंसान जो जज जो है वो इंसान को सजा मौत सुना देता है। वो मुलाकात करता है, उससे मुलाकात करता है कि देखो बॉस तुम्हें सजा सुना दी गई है, वन पे तुम्हें लटका देंगे, तुम या से पूछ योर क्वेश्चन कमेंट रिपीट दैट वन फॉर श्योर देंगे हो जाओगे। देन जिस करीब जो लटकाएंगे तो 15 सेकंड तक की तुम्हें
तकलीफ होगी, ओके, में बहुत मुश्किल होगी, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम। इतना है तो इतनी मुश्किल से जो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर है, छुड़वाने उड़वाने की बात तो नहीं कर रहा, ज्यादा नहीं, छुड़वाना नहीं। ऑफर ये है कि बॉस मैं कर रहा हूँ रिसर्च, मेरे पास इजाजतनामा है कि मैं किसी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। इजाजत ये है बॉस के सांप का जहर इतना खतरनाक है कि अगर दस दे तो इंसान उसी लम्हे मर जाए। वो थोड़ा जैसे ही वो सांप जिसम को तुम्हारा रख मर वो लो कम से कम, हाँ, इन सारी चीजों से मैं बचत हो जाएगी, मेरी जाऊंगा जिंदगी तो आई एम काइंड ऑफ कूल विद दिस। जो डे होता है, जो दिन डिसाइडेड होता है इस पूरे सिलसिले का, उस दिन उसको लिया जाता है, उसको लाकर साइंटिस्ट कमरे में दाखिल होते हैं, हाथ में सांप, सांप को देखता है, उसके अंदर खौफ आता है। फिर जो फूल होता है, जिस तरह से फांसी का जिसके उसके मुंह पे जो है वो कपड़ा डाल दिया जाता है, उसके हाथ में है साइंटिस्ट, अभी बंद है। फिर उससे कहता है कि बस देखो मैं इसका मुंह खोलने लगा हूँ, जैसे ही मैं इसका मुंह खोला, नहीं ये तो मैं फंस लेगा और तुम्हारी उसी लम्हे मौत। वो कहता है बिल्कुल, लेट्स गो। तो साइंस जो है वो आगे बढ़ के उसकी तरफ झुकता है। Cool. चलो, इफ यू आर हियर एंड यू आर लिसनिंग, गिव मी अ यस इन द कमेंट बॉक्स क्विक। एंड अगर आप स्टोरी को फॉलो कर रहे थे तो जरा यस लिख दें जल्दी से, so that I know that you did. Perfect. Good. Thank you, Sijil, Sabah, Karen. Right. So the story was going like कि बस उसकी तरफ झुकता है, झुकने के बाद जो है वो अपने जेब से एक पतली सी सुई निकालता है, और सुई निकालने के बाद उसके हाथ पे चुभा देता है। And जैसे ही उसने उसके हाथ में वो सुई लगाई, वो मर गया द सेम इंस्टेंट एज प्रॉमिस्ड। उसने कहा था ना दसेगा मर जाओगे, वो मर गया उसी लम्हे। अब जब वो मर गया उस सुई के चुभाने से, सांप अभी बंद है, उसका मुंह बंद है, दैट्स नॉट शॉकिंग। व्हाट इज शॉकिंग इज जब वो मर गया उसके बाद एज पर द रिसर्च जो मकसद था, उसकी बॉडी ले जाई जाती है, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है ये जानने के लिए कि वो मरा किस वजह। ऐसे कैसे हो सकता है, बात सांप के जहर की थी, सुई लगी और मर गया। तो वो जब रिसर्च की जाती है तो मौत की वजह जो है वो जिस्म में से जहर निकल, दैट्स शॉकिंग। दैट्स द पावर ऑफ योर ब्रेन, कि जो से जहर उसके जिस्म में कभी गया ही नहीं, वही जहर उसकी मौत की वजह बन गया, बिकॉज द ब्रेन वो हिट दैट पॉइजन इन हिज बॉडी। दैट्स द पावर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर दैट यू आर all carrying with this. That's the power of imagination. That's why they say आप जो है आंखें बंद करें और जरा अपने जहन के अंदर लेकर आए that you are in a place where yes exactly, ठीक है जी। सो आप जरा जहन में सोचें कि जी हम जो है वो पहाड़ों के अंदर हैं, इफ यू हैव बीन देयर, कभी आपका कुछ हल्का फुल्का तजुर्बा रहा हो पहाड़ों को देखने का, तो आपके जहन के अंदर एक एग्जैक्ट पिक्चर खिंच कर आ जाएगी पूरे उस माहौल की जो आप सोचना चाहते हैं। दैट्स द पावर ऑफ योर ब्रेन, जो आपके मेरे दोनों के पास। फर्क सिर्फ ये है आप इसका इस्तेमाल कैसे, ठीक है। लेकिन ये दिया सबको बराबर है विद द सेम पावर, इट्स जस्ट हाउ यू यूज इट। इसको अगर आपको अपने लेवल पर टेस्ट करना है, आई एम अज्यूमिंग वी हैव ऑल एडल्ट्स इन दिस रूम, सो मैं आपको एक मजेदार तरीका बताता हूँ, मजेदार टेस्ट बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। मेक श्योर दैट यू डूइंग इट अंडर सेफ्टी प्रिकॉशंस। वो ये है कि बॉस आप जो है वो अपने एक दोस्त को बुलाएं और बुलाकर बोलें कि बॉस मैं जो है वो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दूंगा, पट्टी बांधने के बाद मैं एक माचिस से तुम्हारे हाथ के ऊपर ना आंख की तपिश को लेकर आऊंगा। जैसे ही तुम्हें आंख की तपिश महसूस होने लगे, तुम अपने हाथ, जब तुम्हारे आंख की तपिश महसूस होने लगे और तुम्हें लगे कि वो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, अपने हाथ को पीछे कर लेना। और ये मेरे एक एक्सपेरिमेंट है, आई वुड वांट टू डू इट, एंड देन विल टॉक अबाउट। उसको आपने इतना ही बताना है, बिठाना है, बिठाने के बाद आपने उसके साथ करना ही है कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधनी है, जेब से माचिस की डब्बी, सबसे पहले माचिस की डब्बी निकालनी है। माचिस की डब्बी निकाल के टेबल पे रखें, उसकी आंखें बंद करें, इसके बाद माचिस निकालें, उसको जलाएं और जलाने के बाद बुझा दें। बुझाने के बाद आपने एक आइस क्यूब जो है ना वो छोटा सा छुपा कर रखना है कहीं पे, वो लेकर आना है, वो इसके हाथ के पास ले जाकर इसको टच करना है। द मोमेंट यू टच हिज और हर हैंड इज द मोमेंट वो अपना हाथ थक करके पीछे कर ले।
और जब आप उससे पूछेंगे ना कि यार क्या हुआ, हाथ को पीछे किया, तो वो आपसे कहेगा कि यार ये तो घर में लगा इसलिए मैंने पीछे कर लिया। वो आपके घर पे हो सकता है मैंने तो बर्फ लगाया, वो आपको करेगा कि नहीं, तो वो 5 नुकसान हो जाएगा। ज़हन ने बात तय कर ली थी ना कि मुझे आंख की तपिश लगी, उसने माचिस देख ली, जब आपने जलाकर बुझा दी तो उसको एक स्मेल आ गई, तो उस दिमाग ने ऑटोमेटिकली उस आइस क्यूब की ठंडक की जगह वहां पर एक तपिश का इमोशन, एक तपिश का सेंसेशन क्रिएट किया। दैट्स द पावर ऑफ द ब्रेन। दैट्स ये टेस्ट आप कर सकते हैं, आप करके चेक करना चाहें बिल्कुल कर लीजिए, ये आपकी और हमारी रियलिटी। अब इस पर्सनल डेवलपमेंट का जो टोटल ताल्लुक है ना बॉस, वो सिर्फ इसी चीज से। If you control it, you'll be able to have a great personal development plan in place. You'll be able to make things happen. आपकी डेवलपमेंट बेहतर होगी, आप बेहतर होंगे, गोल्स अचीव हो रहे होंगे, गोल्स अच्छे से सेट हो रहे होंगे, सबसे पहली चीज तो यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अच्छे से अचीव हो रहे होंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे होंगे। अगर ये एक सॉफ्टवेयर आपके कंट्रोल में आ गया, अगर आप इसके कंट्रोल में आ गए, तो बस पर फिर तो समझ तबाही, फिर तो जो हो रहा है वो हो रहा है, वो तबाही ही है और कुछ नहीं। उसका लेवल हो सकता है उससे ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं। ठीक है बॉस, so that's what you and I need to understand. So vision first, that is something that is essential in every and anything that we are doing. The purpose is something that we need. The second thing is that we understood that soul is something that is very pure. The third thing that we understood is the body is something that is just a machine that is performing tasks. Okay, on the basis of what? On the basis of the instructions that are given from the mind. So what you and I need to work on is the mind. अब इस माइंड की कहानी को समझिएगा। जब हमने इसकी पावर को तो समझ लिया, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ and then we'll take in the questions and just try to bring things happening for you. कुछ बेसिक्स आपके लिए मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यार आपने चीजों को पकड़ना कहाँ से। देखो आधे घंटे 40 मिनट के अंदर, एज आई सेड इन द बिगिनिंग एज वेल, मैं आपको कोई जो है ना वो मंत्र नहीं लिख के दे सकता कि 30 को 3 दिन में 3 दफा जपेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आधे घंटे 30-40 मिनट की कॉन्वर्सेशन, फंडामेंटल समझ आ जाए, बेसलाइन समझ आ जाए, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेट करना आसान है। ठीक है, दैट्स द आइडिया। अब इसी दिमाग के ऊपर एक छोटी सी चीज ये समझो कि ये जो आपके हमारे पास मौजूद है ना, ये माइंड, ये सॉफ्टवेयर आपके मेरे पास आज नहीं आया, ये हमारे पास बचपन से मौजूद। ठीक है, और बचपन से ये ऑपरेट कर रहा है। अब बचपन से जब ये ऑपरेट कर रहा है, तो ये किस बुनियाद पर ऑपरेट कर रहा है? सो व्हेन यू केम इनटू दिस वर्ल्ड, यू हैड नो आइडिया अबाउट दिस। आपको कुछ नहीं पता था। आपको नहीं पता था कि जी चलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अपना है, कौन अपना नहीं है, स्कूल क्या होता है। यू हैड नो आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दिस स्टफ। Slowly and gradually, with time and with age, you got all those experiences from your family, from your culture, from society. आपको वो सारी चीजें मिलती रही हैं जो इसके अंदर स्टोर होती रही, और उस स्टोरेज की वजह से आज आपका एक्शन जो आप करते हैं वो कंडीशनड है, वो मूव नहीं कर रहा, वो उसी पैटर्न पे चल रहा है जिस पैटर्न पे आपको बताया गया। आपने सबने हमने बचपन में सुना जी, स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़ें, डिग्री लें, नौकरी करें, पैसे कमाएं, शादी करें, बच्चे करें, बड़े हो जाएं, मर जाएं। हम सब उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। कोई इस पैटर्न के बरक्स जिंदगी गुजारने की सोचता है तो बोलता है नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर थिंग। ये हम में से नहीं है। हमें ऐसे जुमला सुनने को मिलता है, जो किसी ने कहा था ठीक है, we have been trying a lot as a woman to break the barriers, but I'm not able to. और they are, क्या बात कर रहे हो? And a lot of us who have seen women doing wonders are also the ones who are saying this. ये हम में से बहुत सारे लोग जब किसी ऐसे खत्म के साथ होते तो मोहतात हो जाते हैं। क्यों? जानते पहचानते हुए, बिकॉज वी आर प्रोसेस्ड, वी आर कंडीशनड इन दैट वे। अब ये मशीन चलती उसी तर्ज पर है बॉस। ये आपकी और हमारी कंडीशनिंग है। वो कहते हैं ना जी, एक हाथी, अगर आपने जू में कभी देखा हो,
तो उसको किसी भी रस्सी से नहीं बांधा, खुला छोड़ा। बहुत हो गया तो एक पतली सी रस्सी के साथ, कुंडे के साथ बांध देते। इतना बड़ा जानवर इतने से कुंडे और इतनी सी रस्सी के साथ बंध जाता है, हिलता नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि वो क्या चीज है जो उसे रोकती है? व्हाट डू यू थिंक इज स्टॉपिंग? बताएं जरा, चैट में लिखें, पता चलना चाहिए, सब जानना है। माइंडसेट, गुड, थैंक यू, इट्स ऑन माइंडसेट, राइट। इट्स नॉट जस्ट द माइंडसेट करण, इट्स द कंडीशनिंग। देखो, जब ये लाया गया था ना जंगल से, तब से ये ऐसा नहीं था कि जी मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं आराम से पड़ा रहा हूं, मेरा क्या है ना। जब ये आया था तो ये आजाद फितरत का मालिक था, और इसे घूमना, अलग रहना, अपनी आजादी से इधर उधर जाना ये पसंद था। लेकिन किया ये गया कि जब ये आया तो इसके पांव को जंजीर से बांध के दरख्त के साथ मजबूती से जोड़ दिया गया। ये कोशिश करता रहता था लेकिन वो हाथ नहीं तोड़वा पाता था, क्योंकि उस वक्त वो छोटा सा नन्ही सी जानता, दरख्त और जंजीर की ताकत तो नहीं तोड़ सकता। तो वो कोशिश करता था, फिर जख्म हो जाता था तो रुक जाता था। अरे, जैसे उसको जख्म होता था और वो रुकता था, तो एकदम से सारे लोग आ जाते थे और उसकी खिदमत शुरू करते थे। जी, मरहम पट्टी, खाना पीना, आराम, मालिश, जरा उसका ख्याल रखा जा रहा है, वीआईपी प्रोटोकॉल चल रहा है। फिर वो ठीक हो गया। जैसे ही वो ठीक हो गया, फिर उसकी वो फितरत उसे याद आ गई, उसने फिर तोड़वाने की कोशिश की। जैसे ही उसने जंजीर को फिर तोड़वाने की कोशिश की, नहीं तोड़वा पाए, जख्म फिर से उभर आया। जब जख्म फिर से अपनी ताकत पकड़ा, वो फिर आराम में बैठ गया कि यार अब मुझसे नहीं हो सकता। जैसे ही वो बैठ गया, लोग आ गए, और ये क्या हो गया, मरहम पट्टी कर रहे हैं, खाना खाओ, वीवीआईपी प्रोटोकॉल। दो चार दफा इस तरह से चीज रिपीट हुई। पांचवी छठी दफा के बाद, और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, ही लॉस्ट द वॉर हेयर। तो यहाँ जंग हार गया। उसके अंदर के हाथी ने तो बोल दिया, जाने अपना हमसे नहीं हो सकता, रहने दो। मेहनत करते हो तो तकलीफ होती है, जख्म लगता है, खून निकलता है। When you make an effort, when you try to do something good for others, when you try to do something good for yourself, when you try to rise up the ladder, people will always push you down. That's what he has heard. लेकिन जैसे ही तुम्हें रकम मिलता, तुम आराम करके बैठ जाते हो, तुम्हारा प्रोटोकॉल भी वीआईपी हो जाता है। खाने की टेंशन नहीं, आराम की टेंशन नहीं, मसाज की टेंशन नहीं, केयर की टेंशन नहीं, लोग आगे पीछे खड़े, मस्त। तो यही बेहतर नहीं है? That's what you and I usually see. जैसे you talk about merit, you talk about yourself, you talk about competence, you talk about performance. कह रहे हो बॉस मैं बेहतर करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो कि सर आप ही हैं सब कुछ, तो फर्क पड़ता है। That's where conditioning comes into play. ठीक है? So this is something that you and I are all attacked of. हम सब इसका शिकार हैं, हम सब इस मसले में हैं बॉस, और इसको रीवायर करना जरूरी है। जब तक ये कंडीशनिंग रीवायर नहीं होगी, माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, आपकी और मेरे इंस्ट्रक्शंस बेहतर नहीं होंगे, और जब तक इंस्ट्रक्शंस की क्वालिटी बेहतर नहीं होगी, ये जिस बॉडी को आप और मैं अलाइन करना चाह रहे हो ना सोल के साथ, इस बॉडी की अलाइनमेंट आउटसाइड वो नहीं आ सकेगी, क्योंकि आपके पास वो बिहेवियर्स नहीं आएंगे जो आपको चाहिए। That's what you need to understand. How do you rewire this? Something that's very basic yet very challenging is कि बस this processing zone, any processing zone for a matter of fact, works on an input. ठीक है, बगैर धागा डाले कपड़ा नहीं बनता। ठीक है, बगैर मसाले डाले, गोश्त डाले, चूल्हा जलाए खाना नहीं बनता। So for every process to happen, it is for sure needed कि कोई ना कोई इनपुट हो इसका। आपके और मेरे लिए जो इनपुट के जराए हैं ना, ये वो चीजें हैं जो हम देखते हैं, ये वो चीजें हैं जो हम सुनते हैं, इनसे हमें इनपुट मिलता है। जो हम महसूस करते हैं, इनसे हमें इनपुट मिलता है। तो बॉस ये जो दिमाग खराब हुआ है ना बॉस, ये इसी इनपुट से हुआ है, क्योंकि यही सब देखा है ना मुआशरे में। तो अंदर चला गया, और जैसे ही अंदर चला गया, वो अंदर फिट हो गया। हमने कहा ठीक ही है जब है तो, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, उसको सवाल करने की ताकत कभी आई नहीं। उसको सवाल करना गलत है, ये कैसे पता चला, ये भी हमें इन्होंने बताया। तो
यहां से इनपुट मिला ये ले लो, फिर यहीं से इनपुट मिला ये बेहतरीन है, फिर यहीं से इनपुट मिला कि इसके अलावा कहीं मत जाना। तो हमने इन सारी बातों को अपने पास आते 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 देख हमने इस पर इत्तेफाक कर लिया कि यही ईमान है। We stopped questioning, and that's where the problem starts. ठीक है, सो अगर तो रिवायर करना है इस पूरे सिलसिले को, तो इसी इनपुट सोर्स को कंट्रोल करना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो इसका पूरे अमल को अगर मैं आपको एक आसान मिसाल और कहावत से समझाऊं तो दिस इज मोर लाइक आपने जोर से रखवाली करवानी, बिकॉज इसी को कहना है कि मेरा इनपुट बेहतर करे ताकि यही अपने प्रोसेस को बेहतर कर सके। And with a lot of positive input, yes, positive input is important, yes, exactly. अब इस positive input के आपके पास बहुत सारे जराए हैं। You and I live in a digital age. There's a reason जब हम कहते हैं ना कि अगर आप जरा अफसरदा हो और आपके पास माशाल्लाह रील अफसरदगी की चल रही है, तो आप और अफसरदा होना शुरू हो जाए। ऑल्टरनेटिवली आप पॉजिटिव चीजें देखना शुरू कर दें तो आपके अंदर होप रिवाइव हो जाए। That's how your mind operates. इनपुट चला गया ना, डिफरेंट इनपुट गया, ऑटोमेटिकली प्रोसेस चेंज हो गया, होप आ गई अंदर। यू नीड टू चेंज योर इनपुट। आपने अपने इनपुट सोर्सेज को बेहतर बनाना है, जिसमें से आपका सोशल मीडिया एक है, जिसमें से द न्यूज दैट यू सी इज वन, जिसमें द पीपल दैट यू मीट, दे से दैट यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ द 5 पीपल यू बी विद। अगर आप अपने 5 इर्द गिर्द के लोग आइडेंटिफाई कर लें, पता कर लें वो कौन है, और आप उनका प्रोडक्ट है। दैट्स हाउ इट ऑल इज लाइक। ठीक है, सो इस चीज को समझें अपने उस इनपुट। अब एक इनपुट सोर्स मैं आपको बता रहा हूं जो आप कंट्रोल करते हैं। देखें रील कौन सी आ रही है, ये एल्गोरिथम डिसाइड करता है आप ही के इनपुट के ऊपर, लेकिन करता आपका एल्गोरिथम डिसाइड है। ठीक है, आप नहीं करते। एक चीज जो आप खुद कंट्रोल करते हैं ना, दैट्स व्हाट यू से योरसेल्फ, बिकॉज व्हेन यू से दैट्स एन आउटपुट, but it goes into your ears as a form of input and stays there in your head. तो अपने उस जुमले को जो आप कह रहे हैं ना उसको पॉजिटिव करें। अगर आप हर दफा यही कहेंगे ना, कि किसी ने मुझसे सवाल कर दिया कॉन्फिडेंस पैदा, अगर तो आपके जुमले ये ना कि नहीं नहीं मेरे से नहीं हो सकता, ना ना ना, आई कैन नॉट, आई हैव नेवर डन दिस, हाउ कैन आई डू दिस, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो सकता। इफ दिस इज व्हाट यू से, द इनपुट दैट गोज इनटू योर हेड इज दैट यू कैन नॉट डू इट, एंड सो इट विल नेवर डेवलप द करेज टू डू। इफ यू ऑल्टरनेटिवली से पता नहीं कैसे होगा, वो रास्ता है, गिव मी अ मेथड, मुझे रास्ता बताओ, मुझे तरीका बताओ, फिर मैं बताऊंगा हो सकता है कि नहीं हो सकता। So now you have developed a question for yourself कि what are the possibilities to do it? अगर तो नहीं है तो ठीक है, अगर है तो why not? That's where the courage is born. So make sure that what you say for yourself is something that is positive for you, and that is what you can control, and that is what my primary message this entire conversation was. The boss is in this journey of personal development. You control this journey for yourself. You make sure that you make it happen or not. You make sure that if it will be productive and positive or not. So just make sure that you control it yourself. That's the core message, core idea for each one of you. With that vision, with that alignment, you'll be able to deliver, you'll be able to make things happen, and you'll be able to do good for yourself. With that, I'll close my part here, and I'd like to have some questions if there are any. Otherwise, we're gonna have to say it and off because it's good time. आप लोगों ने अच्छा खासा time भी दे दिया है, so thank you very much for your time. Focus के लिए I've said it again and again. जिस तरह से मैंने कहा, rewire your thinking. You feel that you don't have focus because you're saying it to yourself. How can I reframe? हर चीज को सवाल की सूरत reframe करो, because your brain loves challenges. इसको जब statement दोगे तो ये बैठ जाएगा, इसको सवाल दोगे तो ये काम करेगा. As I've said, अगर ये master है तो scene off है boss, तुम तो scene on है boss. We're gonna try something in your life, you will start trolling us because of this reason, many people like behind, never able to stay open and positive. Good, मूर्ख, बहुत ही मूर्ख सवाल है ये, because if you're thinking about what the trolling is all about, then you're not gonna do anything. Boss, देखो एक trolling के ऊपर बड़ी मजेदार है, there's this very beautiful meme that I recently saw. In fact, थोड़ा टाइम पहले भी मैंने देखी थी, came across again this time around as well. देखो अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि what will people say, इस पर बड़ी मजेदार रील होता ये है कि 4 अफराद होते हैं, एक गधा होता है, 4 नहीं 3 अफराद होते हैं सर, एक गधा होता है, एक शौहर होता है और एक बेगम होती है। ठीक है, ये तीनों चल के जा रहे होते हैं पैदल पैदल अपना अपना,
ठीक है, तो थोड़ा आगे जाते हैं तो एक 4 लोगों का टोला मिलता है जो कहता है कि यार कैसे गधे लोग हैं यहाँ, गधा साथ है और बैठ ही नहीं रहे गधे पे यार, पैदल चल रहे हैं साइड में। तो वो जो है वो दोनों गधे पे बैठ जाते हैं और थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा चलते हैं तो फिर 4 लोग मिलते हैं। वो इनको देख के कहते हैं कितने जालिम लोग हैं यार, दोनों के दोनों गधे पे बैठ गए, अजीब सी बात है यार। तो ये उनको सुन के फिर जो शौहर है वो परेशान हो जाता है, वो पीछे तक जाता है, वो उनको बिठा के रखता है, फिर चलते हैं। थोड़ा सफर क्रॉस करते हैं तो बोलते हैं कैसा इंसान है, कैसा मर्द है यार, बेगम बैठी हुई है खुद चल रहा है, अजीब पागल है यार। तो वो ये सुनता है तो कहता है कि यार ओहो, तो बेगम को उतार देता है, खुद बैठ जाता है, फिर चलते हैं। तो 4 लोग थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं और वो कहते हैं ओहो कैसा शौहर है यार, बेगम को चला रहा है खुद बैठा हुआ। सो ये 4 लोग है ना भाई, ये चारों सिचुएशंस में कुछ ना कुछ बोलेंगे। You're gonna decide for yourself. जैसे मैंने कहा ना, you need to align your brain, your mind with your soul. That's the alignment that you need, boss. If you have that alignment, trolling doesn't matter. People troll the best. आपको रमेश वक्त को बोला ना कि जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट हो रहा है, 5,000 का टिकट है, हाथों हाथ बिकेगा, आई कैन बेट। सोशल मीडिया पे जाके उसकी ट्रोलिंग देख लें खाली। So it's not just all about the trolling that you feel. If you're doing good, in fact, बड़ा मशहूर कॉल, आई डोंट नो शायद अबूजरी का कॉल है कि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो बॉस तो तुम मुनाफिक हो। So let people say something about you. It's completely okay and normal. That makes you human. So that's about your question. And because ये सिर्फ तुम्हारा सवाल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की सिचुएशन। Good. Any other question? एक सिर्फ एक बात को याद रखो बॉस, it's all about your conscious effort. The change comes in from your conscious effort. Results come from your conscious effort. अगर अपने इस चीजों की जिम्मेदारी ले लोगे इन द मोमेंट तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। इफ यू लीव इट, जिंदगी तो वैसे भी गुजर रही है, तुम खत्म भी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स अबाउट द क्वेश्चंस दैट यू कैन आंसर। गुड। हाउ वी फेस एनी चैलेंजेस इजीली? कायनात, देयर इज नो वे। चैलेंजेस आसानी से नहीं होता है। मैं बोलूं किसी को हीरा चाहिए, सबको चाहिए यार, मैं सबको एक एक छोटा छोटा कोयला पड़ा दूं, सब मेरे को आप मार के जाओगे, क्यों भाई? हीरा चाहिए, कोयले से तराशने की मेहनत नहीं करनी, तो ऐसे नहीं हो सकता। मेहनत लगेगी, बिना मुशक्कत नहीं होता लगेगी। So you'll have to make an effort, only then will you be able to get things done. Challenges easy नहीं होता, as I usually say this. With life, with time, it doesn't get easier. You get more tougher. You get more stronger. That's how it is supposed to be. And something that's very beautiful, जो कि नदीम चौहान की बड़ी एक मशहूर का बात थी, one of our mentors, वो कहते थे कि अपने तूफान अपने खुदा से मत कहो कि तुम्हारा तूफान कितना बड़ा है, अपने तूफान से कहो कि तुम्हारा खुदा कितना बड़ा है। That's what it is supposed to be. You need to get stronger. The challenges don't get easier at any point in time. So don't ask for things to get easy. If it's easy, everybody will get it. And if everybody will get it, what's the point? You want something that not everybody has it, right? तो फिर you'll have to do something. जो वही करोगे जो हमेशा किया तो वही मिलेगा जो हमेशा मिला। वो चाहिए जो कभी नहीं मिला तो वो करना पड़ेगा ना जो कभी नहीं किया। That's the game, boss. Cool. मेरी तरफ से इजाजत। Thank you very much. I really hope. I know these small sessions aren't very, hands-on with a lot of things. Especially रात का टाइम बहुत सारी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं, तो कुछ ना कुछ चल भी रहा होता है और सेशन भी सुन रहे होते हैं। But I really hope कुछ ना कुछ इस यहाँ पर गया होगा, कुछ subconscious help आपको आई हो। So thank you. It was really an honor. If you like and I enjoyed this thing, कुछ भी अच्छा लगा, positive लगा, तो I really request if you could drop me a recommendation, a feedback on my LinkedIn. Just there अगर आप हैं वहाँ पर मौजूद थे, जरा एक feedback लिख दीजिएगा तो जरा पता चल जाएगा आपने क्या सीखा। बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कुछ नहीं समझ आया बवाल क्या घटिया इंसान है, लिख देना यार जाके, कोई मसले वाली बात नहीं। 4 लोगों को लगेंगे भी हम ऐसे, ऐसी कोई मसले वाली बात। So yeah, thank you very much. Thank you, sir. Thank you from SEO for this wonderful session and giving insights to personality development, basically. So thank you, sir, very much. It was a very wonderful session with you. Thank you, Karan. Thank you very much. Thank you, Zamina. Thank you, Sajil. Thank you, Kana. Thank you, Misbah. Thank you, everyone in this room for being a part of this. So we are ending our session here. Cool. Yes. Chalo. Ta-ta. Bye-bye. Good night.